तो प्रीलिम्स एंड मेंस का एक मंत्र जो मेरे को ओवर द ईयर रियलाइज हुआ, एंड दैट इज अबाउट रिविजन। हम रिविजन करना भूल जाते हैं या खुद को कन्विंस करते हैं कि हमको याद होंगी ये चीजें, बट एक्चुअली में वो चीज हमको याद रहती नहीं है। एंड तो माइंड की भी एक लिमिटेड कैपेसिटी है, वो कितना रिटेन कर सके। आवर माइंड कैन नॉट रिटेन या ब्रेन कैन नॉट रिटेन लार्ज अमाउंट ऑफ चीजें अनलेस आप उसको बार बार देख रहे हैं। अगर हम कोई चीज को वापस उससे गो थ्रू कर लेते हैं तो फिर मेमोरी में वो कहीं ना कहीं फिट हो जाती है। अगर मैं आज 5 पेज पढ़ रहा हूँ, फिर उसको पढ़ता ही नहीं हूँ 10-15 दिन, तो वो फिर वो जो उस दिन मैंने 5 पेज पढ़े हैं वो वाला पूरा टाइम हमारा जाया हो जाएगा और आपको फिर पढ़ना पड़ेगा उतना टाइम ही देकर। लेकिन अगर आपने रिविजन किया है हुआ, तो आपको शायद जो चीज पहले याद करने में 6 घंटे लग गए, 4-5 घंटे लग गए, नेक्स्ट टाइम आप आधे 1 घंटे में उसको रिविजन कर सकते So, hello everyone. Today we have Exorbitant Rishabh Rai with us. He has recently secured 11th rank in MP Judicial Service Examination 2024. Over to you, Rishabh. Please briefly introduce yourself. हो। हेलो सर, सो माय नेम इज ऋषभ राय। I graduated in the year 2020 from National Law University Odisha, and thereafter I started preparing for the judicial services examination, particularly in Madhya Pradesh Judicial Services. So this was my third attempt for the Madhya Pradesh Judicial Service examination, and fortunately I was able to clear it. And simultaneously, I was also practicing before the Delhi High Court and the Delhi District and Session Court. So I think that also helped me a lot in clearing the final examination. Okay. Also, Rishabh, as you were already practicing before the courts and you were preparing along with your job. So, can you also tell your viewers that how you managed that particular thing? So initially, when I was for the, I initially started my practice before the Allahabad High Court. So at that point of time, the good part of my senior was that I only had to do the chamber work. So I was doing a bit of drafting work and was not regularly attending the course. So used to get ample amount of time for my preparation. But yes, when after the means of the Madhya Pradesh, I came back in the year 2024 to the Delhi, and thereafter I started practicing. And actually, that helped me in my the final interview because there were practical questions by the honorable judges of the Madhya Pradesh High Court, and because of my practical experience, that helped me a lot. Uh, I suppose in the interview process. It's good to hear about your academic journey so far, Rishabh. Rishabh, my first question from my side is how are you feeling after becoming a judicial officer? And how's your family reaction to your selection? And judge बन के अब कैसा feel हो रहा है? Can you please tell about it? सर ठीक है, मतलब आई एम फीलिंग तो ओके। द फीलिंग इज स्टिल आई एम नॉट डाइजेस्टेड, बट हाँ, पेरेंट्स काफी हैप्पी हैं तो उसको देख के अच्छा लगता है। Yeah. And what will like is it your aim to become a judicial officer or is it some your parents' aim that they want to see you as a judicial officer? नहीं नहीं सर, एम तो पर्सनली मेरा ही था ये, और किसी ने कोई प्रेशर भी नहीं कभी दिया। दे वर ऑलवेज कि आपको जो करना है करिए। एंड ऑल दिस गोज बैक टू इन द ईयर 2018 व्हेन आई वाज प्रैक्टिस व्हेन आई इंटर्न विद जस्टिस एनवी रमन्ना, द एक्स सीजीआई ऑफ इंडिया। एंड व्हेन आई वाज डूइंग माय इंटर्नशिप बिफोर हिम, एंड आई हैड अ ब्रीफ कम्युनिकेशन उनके साथ, तो देयर ही टोल्ड मी दैट ये चीज ट्राई कर सकते हो आप, यू कैन आइदर ज्वाइन जुडिशियल सर्विसेज और गो फॉर लिटिगेशन। एंड वहां से इंटरेस्ट मेरा बढ़ा, एंड आई वाज ओपन टू बोथ ऑफ दीज प्रोफेशन, लिटिगेशन भी एंड जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन भी। एंड ग्रेजुअली आई गॉट सपोर्ट फ्रॉम वन ऑफ माय 2-3 फ्रेंड्स हु आर आल्सो थिंकिंग ऑफ जॉइनिंग द जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन, एंड उससे काफी सपोर्ट मिलके फिर सर मैंने ये डिसाइड किया कि मैं जुडिशरी का ही तैयारी करूँ। तो सर इट वाज आल्सो ऑल फुल सपोर्ट ऑफ द पेरेंट्स, बट हाँ, ड्रीम मेरा ही था। All right, Rishabh. Now, Rishabh, let's get into the nitty-gritties of your preparation. Tell us about your judicial preparation journey, from where you got the motivation to start this journey, and how has this journey been? Please give a general view about your preparation. सर जर्नी का जैसे मैंने कहा कि स्टार्टिंग पॉइंट इंसेप्शन में हमेशा वही कहता हूँ जो जस्टिस रमन्ना जी के साथ मैंने किया था काम, वहां से इंसेप्शन पॉइंट था। लेकिन जब ग्रेजुएशन हो गया तो उसके बाद कोविड लग गया था, बिकॉज आई ग्रेजुएटेड इन 2020। तो एक लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम तक जो मेरी प्रिपरेशन थी वो ट्रैक पे नहीं थी। तो इस टाइम पे मेरे जो फ्रेंड्स थे दे गाइडेड मी, एंड मैंने एक अपनी मेरे सीनियर्स थे जो
की टू माई सक्सेस, एंड दे वर ऑलवेज देयर टू गाइड मी कि आप ऐसे करिए। मेंस की जो प्रिपरेशन थी वो उनके ही गाइडेंस में मैं कर रहा था। सो दे वर वेरी क्रिटिकल। अगर मेरे कोई भी आंसर्स में गलतियां होती थी तो दैट दे वर द की टू माई सक्सेस। तो इसलिए सर उन श्रेय उन लोगों को ही जाता है। आई वॉज जस्ट फॉलोइंग व्हाट दे वर टेलिंग मी टू डू। सो प्रिपरेशन काफी टफ थी सर, बट क्योंकि मैंने टाइम भी काफी जाया किया, बट फाइनली आई वॉज एबल टू क्लियर इट। So after hearing this, Rishabh, I feel that a journey is like a roller coaster because you started preparing in year 2020 and you became the judge in 2025. So how did you reinvent yourself after your setback in previous MPGS examination and even after reaching the interview stage? So how did you reinvent yourself? सर ये काफी जरूरी है जानना कि ये सेटबैक्स हमें आते रहते हैं लाइफ में, एंड आई वॉज ऑल्सो वेरी डाउन एंड आउट ऐसे पॉइंट पे। एंड इस पे मेरे मेरे पेरेंट्स थे ओवर कि वो सपोर्ट करते रहे मुझे। इसमें ये चीज है कि हम जब एग्जाम दे रहे होते हैं तो हमें समझ आ जाता है कि हमारी कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से फाइनल सिलेक्शन हमारा नहीं हो पा रहा है। कोई बहुत ज्यादा आपको बड़े चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे चेंजेस होते हैं जिनको अगर हम इनकॉर्पोरेट कर लें तो हमारा जो प्रोसेस है वो रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाएगा। तो सर वही चीज मेरी थी जो मैंने कुछ पेपर्स मध्य प्रदेश जुडिशरी के मेंस एग्जामिनेशन में गलती करी थी, उनको सर डिस्कस किया मैंने अपने मेंटर्स के साथ, और उसको फिर सर इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करी। एंड वो चीज फिर एंड में सर रिजल्ट में दिखी, क्योंकि शुरुआत में सर काफी सेटबैक था बिकॉज हम काफी ज्यादा एक एम्बिशियस होकर तैयारी करते हैं, और जब फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है तो एक बहुत बड़ा सेटबैक रहता है। पेरेंट्स के लिए उतना नहीं, लेकिन आप पर्सनली फील कर रहे होते हैं बहुत ज्यादा। तो ऐसे में अगर उनका सपोर्ट रहेगा तो फिर वी कैन ऑलवेज गिव एक और ट्राई दे के हम उसको ठीक कर सकते हैं। Also, Rishabh, can you please tell us that what was the defining moment of your journey in consonance with Exop law? ये सर जॉब लॉक का आई पर्टिकुलरली यूज द मॉक टेस्ट जो कि सुबह सुबह आता था, एंड दैट वाज वेरी की टू माय प्रीलिम्स प्रिपरेशन। क्योंकि हर जो भी लोग तैयारी कर रहे थे देयर वाज नथिंग स्पेसिफिक सॉर्ट ऑफ फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। जिनसे भी पूछता था मैं अपने किसी सीनियर से, तो दे यूज टू टेल मी कि बेयर एक्स करो आप, बट इन माय ओपिनियन बेयर एक्स सिर्फ से नहीं होगा अगर हम मॉक सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो। एडजॉब लॉग में सर मेरे को सुबह सुबह ही वो ऐप पे मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा होता था। मॉक क्वेश्चंस हमेशा उसमें एमसीक्यू अवेलेबल रहते थे, एंड बहुत अच्छी क्वालिटी के थे वो। ऐसे बहुत कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होते थे कि आपको दिमाग में लगाना है, अच्छी क्वालिटी के थे। तो कई बार जाके क्वेश्चन नहीं बन रहे होते थे तो मेरे तो मार्क्स नहीं आते थे शुरुआत में ठीक, तो आई वुड गो बैक एंड फिर बेरैक में रीड करता था कि अच्छा ये यहाँ से इन्होंने पूछा है, and जो कि आ सकता है। एंड क्वेश्चंस आते थे वैसे ही, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ नए क्वेश्चंस एग्जामिनर पूछ ही रहा है। तो अगर आप ऐसा कोई मॉक लगा रहे हैं एमसीक्यू तो वो डेफिनेटली बहुत हेल्प करता है आपके दिमाग को ऐसा ब्रॉड सोचने में। Yes, Rishabh, and this was one thing which we started back in 2020, and still till date, we launch the daily quizzes every day on our app. That is 10 questions, which is in a visual learning manner with the visual learning explanation, detailed explanations. So, as it has helped you in the examination, it has also like we get to know or we get to hear from each and everyone that they are consistent only because of this particular daily schedule. Because डेली क्या होता है, आप पढ़ लेते हैं सिंपली से वी राइट आंसर्स, बट कभी भी आपको ये एमसीक्यू सॉल्विंग प्रैक्टिस छोड़नी चाहिए, चाहे आप दिन के 10 क्वेश्चन करो, बट दैट शुड बी इन अ मैनर विच इज वेरी सिस्टमैटिक. सो व्हाट इज योर व्यू अबाउट इट? जैसे बिल्कुल क्या है कि हम व्हाट वी डू इज, या जो गलती मैं भी करता था कि हम सिर्फ चीजें ही पढ़ते रहते हैं, याद करते रहते हैं, एंड फिर उसको याद कर रहे हैं, लेकिन अगर हमने सही से अपने आप को टेस्ट ही नहीं किया है उन कंडीशंस में रख के कि भाई ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे कि नहीं एग्जाम में। क्योंकि बेरेक्ट रीडिंग इज वन थिंग, आप पढ़ सकते हो उसको, लेकिन क्या आपने उसको इस तरीके से पढ़ा है जिस तरीके से एग्जामिनर पूछ सकता है। तो उन एमसीक्यूज या उन मॉक्स में सर ये फायदा होता था कि वो इस तरीके से पुटअप होते थे कि आपका ब्रेन सिर्फ उसको रीड नहीं कर रहा, उसको समझ भी पा रहा है कि भाई ये अगर क्वेश्चन में कुछ प्रोविजन में ये चीज लिखी है तो वेदर इट इज अ मैंडेटरी है, डिस्क्रिशनरी है, केस लॉ बेस्ड भी होते थे। तो बेयर एक्ट से कई बार आप केस लॉस कवर नहीं कर पाते हैं,
क्योंकि वो अब अपडेट नहीं होते। लेकिन अगर आप वो एडजॉब के एमसीक्यू देखें तो उनमें वो रेगुलरली दे आर आल्सो आस्किंग अस द recent judicial pronouncement also. So that also helps a lot of student. And actually one of my friend also who was a regular subscriber, he told me कि उसको तो काफी ज्यादा फायदा हुआ है प्रीलिम्स से। Perfect, Rishabh. So, Rishabh, it sounds fantastic about your preparation, about your journey. तो आप मुझे ये बताओ ऋषभ, एक बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन है जो मोस्टली जुडिशियल एस्पिरेंट्स के दिमाग में आता है कि सर एक स्टेट पर फोकस करें, मल्टीपल स्टेट पर फोकस करें, बिकॉज एज यू नो द वैकेंसीज ऑफ जुडिशियल आर अनप्रेडिक्टेबल एंड वोलेटाइल. So is it wise for aspirants to go with multiple states so that the risk is bifurcated for them? यस, इन माय ओपिनियन आपको मल्टीपल स्टेट्स टारगेट करना चाहिए। एक दो स्टेट्स अगर आप करेंगे तो आपकी प्रिपरेशन में गैप आता रहेगा। गैप इन द सेंस आप टेस्ट नहीं कर पाएंगे खुद को। और इस प्रोसेस में जरूरी है कि आप गलतियां करें, टेस्ट करें खुद को, फिर उनको रेक्टिफाई करें। ये कंप्लीट साइकिल चलती रहनी चाहिए। इससे इनिशियली आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। कुछ लोग होते हैं जिनको शुरुआत में ही भी सक्सेसफुल हो जाते हैं, बट आई फील कि वो बहुत मिनिमम कैंडिडेट्स होते हैं जिनको ऐसे सक्सेस मिलती है। आई वॉज ऑल्सो अंडर इम्प्रेशन जब मैंने स्टार्ट किया था कि नहीं, मेरे को पहले अटेम्प्ट में क्लियर हो जाएगा, बट रियलिटी वैसी होती नहीं है। तो इसलिए जरूरी है कि आप अगर मल्टीपल स्टेट्स टारगेट कर रहे हैं तो आपकी जो प्रिपरेशन की जो चेन है, साइकिल, वो पूरी होती रहेगी। एंड अगर आपने लेट से राजस्थान दिया और आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया, नहीं भी किया, तो आप जब इस एक्सपीरियंस को आप हरियाणा में यूज कर सकते हैं। अगर आप फिर वेट कर रहे हैं कि राजस्थान ही में दूंगा 1.5 साल बाद, तो उस बीच में गैप हो जाएगा और आप टेस्ट नहीं कर पाएंगे खुद को प्रीलिम्स सेंट्रिक माइंडसेट में। तो मेरे हिसाब से देना चाहिए सर, और मल्टीपल स्टेट्स टारगेट करने चाहिए। मैंने 3-4 स्टेट्स ही टारगेट किए थे, एंड आई स्टिल बिलीव कि मुझको डीजेएसडी एक अटेम्प्ट देना चाहिए था कि देखने के लिए कि कैसा होता है। तो डैट आई ऑलवेज रू कि ये अटेम्प्ट भी शायद दिया जा सकता था। लेकिन डरना नहीं चाहिए कि हम डरते हैं कि हम प्रीलिम्स नहीं देते हैं, क्या होगा, होगा कि नहीं होगा, वहां जजेस हमें सिलेक्ट करेंगे कि नहीं। डिफरेंट माइंडसेट के, बट ऐसा है नहीं। प्रैक्टिकल रियलिटी में अगर आप अच्छे हैं तो दे विल सिलेक्ट यू। Yes, exactly. Most of the students have this like thing in their mind कि यार आई एम बिलोंग फ्रॉम एमपी, राजस्थान में मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, और आई बिलोंग फ्रॉम दिल्ली, एमपी में मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, बिकॉज वो लोग वहीं के स्टूडेंट्स को लेते हैं. सो डू यू थिंक कि इट इज सच अ थिंग विच हैपेंस इन रियलिटी और इट्स जस्ट अ मिथ? आई थिंक इट्स एन एब्सोल्युटली मिथ। अगर मैं, मेरा एक्सपीरियंस जो रहा है जिन स्टेट्स में, अगर मैंने यूपी उत्तर प्रदेश जुडिशियल सर्विस का भी इंटरव्यू दिया था, एंड आई नो फॉर अ फैक्ट कि बहुत लोग हैं जो बाहर स्टेट से आए और उनको सिक्योर हुई उनकी परफॉर्मेंस और उनको रिजल्ट मिला। आई एम फ्रॉम प्रयागराज उत्तर प्रदेश, बट मैं एमपी में गया, एंड दे वर वेरी कॉर्डियल विथ मी। कहीं भी ऐसा कुछ भी डिस्क्रिमिनेटरी चीज नहीं लगा जो बोलते हैं। दिल्ली ऑल्सो फॉर दैट मैटर, क्योंकि दिल्ली का खुद का क्राउड तो बहुत ज्यादा नहीं है जो देता है, एंड बाहर के लोग ही हैं जो वहां पे आके पढ़ के एग्जाम दे रहे हैं। तो वो भी ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि होता है, बट मैंने एक्सपीरियंस किया तो आई कैन से कि मेरे साथ तो कभी भी ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन हुआ, एंड इट वाज ऑल क्वेश्चन वेर अबाउट लॉ के एस्पेक्ट में ही। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं हुआ कि आप ये कर लेंगे, वो करेंगे। तो आई डोंट थिंक इतना डिस्क्रिमिनेशन है कुछ। So, Rishabh, we have spoken about this a pertinent thing that it is always better to bifurcate the risk of states. And Adzob also advises the same thing that never focus on a single state. You should definitely have 2-3 states in mind because vacancies are unpredictable and volatile. And the syllabus is approximately 70 to 80% sub-state or similar. Okay, Rishabh, moving further. We want to ask you, what was your strategy to clear this exam? Tell us about prelims, means, and if you want, you can cover the interview as well. So, can you tell us the highlights of your preparation? ये सर, अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूं सर, तो मध्य प्रदेश में एक तो जो जो हमारे सीनियर्स कह के गए हैं, एड्सॉक में भी ये बताया गया था कि आपको बेयर एक्ट तो बिल्कुल की है, तो वो तो छोड़ छोड़ नहीं सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग इसकी बेयर एक्ट पे आपकी कमांड होनी चाहिए। एंड इसके अलावा सर एमसीक्यू मॉक सॉल्व करिए आप। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बहुत जरूरी है। एंड सर थर्ड मोस्ट है कि आप पास्ट ईयर क्वेश्चन उस स्टेट के देखिए जो 10 ईयर्स 15 ईयर्स अनसॉल्व पेपर है। क्योंकि मध्य प्रदेश में हाईकोर्ट करवाता है, तो हाईकोर्ट और भी एग्जामिनेशन करवा रहा है। नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगी लॉ डिपार्टमेंट में, लॉ से रिलेटेड। तो कई बार ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो वहां से भी आते हैं डायरेक्टली। और एज अ
जुडिशरी कैंडिडेट, नोबडी कैन एक्सपेक्ट कि आप जीके, इंग्लिश और कंप्यूटर में एकदम महारत हासिल कर लेंगे इतने कम टाइम में। तो उसके लिए आपको थोड़ी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। वहां से क्वेश्चन देखिए कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं कंप्यूटर और जीके में, क्योंकि एंड में आपको सिर्फ वो क्वालिफाइंग पेपर है, लेकिन कई बार रुक जाता है कैंडिडेट्स का। तो वहां से आप देखिए क्वेश्चन कि इंग्लिश में किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। रिपीट, अगर 10 में से 3 क्वेश्चन भी आपको वहां से मिल गए, तो कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है कि वो बाकी 7 में खुद से कुछ नहीं कर सकता, वो 2-3 भी उसने और कर लिया तो 10 में से 6, 6-7 मार्क्स कंप्यूटर में अच्छे मार्क्स होते हैं। तो इस तरीके से हमें स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए हम लूसेंट उठा के हर चीज पढ़ लें, वो पॉसिबल होगा ही नहीं इतने कम टाइम में। और आप फिर अपने लिए सिलेबस बढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा दिमाग यूज करके देख लीजिए कि कैसे पेपर सेट कर रहा है एग्जामिनर। और वो पैटर्न बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता है एज फार एज दिस 30 मार्क्स कंसर्न। जो एक 150 नंबर का पेपर है, 120 तो इज लॉ, बट जो 30 मार्क्स है उसमें बहुत ज्यादा कुछ परिवर्तन नहीं करते हैं, वो उनका पैटर्न सेट है अभी भी। तो वहां से हम मोटिवेशन ले सकते हैं कि भाई ये क्वेश्चन आ सकता है कि। तो प्रीलिम्स की सर ये स्ट्रेटेजी, मल्टीपल मॉक्स जरूरी है। मेंस के लिए सर मैं कहूंगा कि आपके पास अगर नोट्स रेडी हैं तो दैट हेल्प्स अ लॉट, क्योंकि एंड मोमेंट पे आप बुक से रेफर करेंगे तो वो दिक्कत कर जाएगी आपको, और रिवीजन नहीं हो पाएगा। एंड इसका सक्सेस ही आप मल्टीपल बार उसको रिवाइज कर सकें। तो अगर आपके नोट्स रेडी हैं, तो ये नहीं कह रहा कि हर सेक्शन आप कवर कर सकते हैं, लेकिन अगर देख रहे हैं कि इन सेक्शंस में से क्वेश्चंस बने हैं पहले 1-2 बार, तो उन सारे क्वेश्चंस को कवर करके मेंस का एक अपना आप नोट्स बना लीजिए और उसको ही बार बार पढ़िए। डोंट मेक बिग टारगेट्स कि मैं इस आंसर को 5 पेज लिख दूंगा, क्योंकि वहां समय है नहीं। आपको लिमिटेड टाइम में ही 2-2.5 पेज या 1.5 पेज लिखना है। तो सारे टॉपिक्स को ट्राई करिए, कवर कर लीजिए और उनके मल्टीपल रिवीजन करिए। ऐसे और वाला सब्जेक्ट है, ये आपको वही रिसेंट टॉपिक जो उस समय करंट अफेयर में चलते हैं वो उससे ही पूछते हैं। हमारे टाइम मध्य प्रदेश टूरिज्म वाला टॉपिक पूछा था, तो दीज आर टॉपिक्स जो आप आराम से फोर्स ही कर सकते हैं कि यार अगर मैं एक स्टेट क्वेश्चन पूछेंगे वो तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे। ये है। एंड ट्रांसलेशन के लिए डिग्लॉट की बेरैक जो आती है हिंदी टू इंग्लिश, उसको करना पड़ेगा, क्योंकि वो थोड़े आज रिसेंट ईयर्स में काफी टफ क्वेश्चन पूछने लगे हैं ट्रांसलेशन में। काफी डिफिकल्ट है, तो अगर आप रेगुलरली नहीं कर रहे हैं तो ये आप सोचेंगे प्रीलिम्स के बाद मैं कर लूँ, तो वो हो नहीं पाएगा, क्योंकि 2 महीने में किसी की भी हिंदी इतनी अच्छी नहीं हो सकती। तो आपको पहले से ही करना पड़ेगा। एंड इंटरव्यू सर तो वो तो यही है कि हमने अगर मेंस ठीक लिखा है तो हेल्प होती है। एंड वो एमपी का जैसा मुझे पता है कि वो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ही पूछेंगे, तो आप इस माइंडसेट से ही जाइए कि वो ऐसे कोई रटे हुए सवाल नहीं पूछते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट क्या, एग्रीमेंट क्या है। वो डिफिकल्ट लेवल के थोड़े क्वेश्चन पूछते हैं जो प्रैक्टिकली आ सकते हैं कोर्ट में। So, Rishabh, when you started your preparation, you were focusing on prelims and then mains, or you integrated your preparation in a manner where you were simultaneously preparing for both of the stages? Because बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि पहले प्रीलिम्स की करते हैं, once they qualify the prelim then they start with the main preparation, and that is the stage where they like lose the battle. जी सर। सर इसमें यही है कि अगर हम सिर्फ प्रीलिम्स सोच के करेंगे तो प्रीलिम्स के बाद मेंस में बहुत कम टाइम मिलता है। कई बार तो हमें 1.5 मंथ से मिले थे, तो उसमें तो वो तैयारी हो नहीं सकती, आपके रिवीजन भी नहीं हो, रिवीजन के आप एक बार याद भी नहीं कर पाएंगे कोई चीज। तो ये जरूरी है कि आप स्टार्टिंग से मेन सेंटर करिए, और उसके बीच बीच में हम प्रीलिम्स के लिए भी मॉक वगैरह सॉल्व करते रहिए। टाइम बाइफरकेट कर लीजिए, बट मेजोरिटी आपका मेंस पे ही होना चाहिए, क्योंकि दैट इज द फैक्टर वो जो कि फाइनल रिजल्ट आपका डिटरमाइन करेगा। Exactly, Rishabh, and we are really excited to hear कि आपने इस आर्ट ऑफ इंटीग्रेशन को समझा, अपने जुडिशरी अपने ड्रीम को रियलाइज कर लिया। कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो समझ ही नहीं पाते कि प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन में आइसोलेशन में नहीं करनी होती है। वो प्री पैंडेमिक एरा था जो चला गया। आज की प्रिपरेशन डिमांड्स इंटीग्रेशन है, एंड आपको प्रीलिम्स और मेंस को साथ में लेकर चलना ही पड़ेगा अगर आपको रैंक जल्दी चाहिए। तो नाउ ऋषभ, प्लीज टेल द स्टूडेंट्स हु आर also the aspiring judicial officers that what was your mantra for prelims as well as mains preparation? सर प्रीलिम्स एंड मेंस का एक मंत्र जो मेरे को ओवर द ईयर रियलाइज हुआ, एंड दैट इज अबाउट रिविजन। हम रिविजन करना भूल जाते हैं, या खुद को कन्विंस करते हैं कि हमको याद होंगी ये चीजें, बट एक्चुअली में वो चीज हमको याद रहती नहीं है। एंड तो माइंड की भी एक लिमिटेड कैपेसिटी है, वो कितना रिटेन कर सके। आवर माइंड कैन नॉट रिटेन, या ब्रेन कैन नॉट रिटेन लार्ज अमाउंट ऑफ चीजें अनलेस आप उसको बार बार देख रहे हैं। अगर हम कोई चीज को वापस उससे गो थ्रू कर लेते हैं तो फिर मेमोरी में वो कहीं ना कहीं फिट हो जाती है। अगर मैं आज 5 पेज पढ़ रहा हूँ,
फिर उसको पढ़ता ही नहीं हूँ 10-15 दिन, तो फिर वो जो उस दिन मैंने 5 पेज पढ़े हैं, वो वाला पूरा टाइम हमारा जाया हो जाएगा, और आपको फिर पढ़ना पड़ेगा उतना टाइम ही देकर। लेकिन अगर आपने रिविजन किया है वहाँ, तो आपको शायद जो चीज पहले याद करने में 6 घंटे लग गए, 4-5 घंटे लग गए, नेक्स्ट टाइम आप आधे 1 घंटे में उसको रिविजन कर सकते हैं। दैट डज नॉट मीन कि हम एकदम ही मेमोरी में फिट हो जाएगी, लेकिन हाँ, आधा 1 घंटा तो लगेगा ही। तो दिस इज वन थिंग जो हम मिस आउट करते हैं, मैंने भी मिस आउट की थी, मेरी गलती है ये, कि हम उसको रिवाइज नहीं करते थे। तो रिविजन इज की। आप जितना भी पढ़ रहे हैं उसको थोड़े थोड़े टाइम पर रिवाइज जरूर करिए, वरना वो सब उड़ जाएगा। एग्जैक्टली ऋषभ, आई टोटली एग्री विद यू कि रिजल्ट ओरिएंटेड जुडिशियल प्रिपरेशन का मतलब यही है कि आप होलिस्टिक प्रिपरेशन करें और उसको टाइम टाइम पे रिवीजन करें, बिकॉज रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इफ यू रिवाइज देन ओनली यू विल बी एबल टू रिटेन वॉट एवर यू स्टडीड। एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है जर्नी में, वो है आपके नोट्स, एज यू हैव टोल्ड अस। सो बिकॉज वही आपको रैंक ला कर देते हैं। व्हाट वाज द नोट मेकिंग स्ट्रेटेजी एंड हाउ डिड यू गो अबाउट नोट मेकिंग के लिए सर, मैंने जैसा बताया, जो मेरे मेंटर्स थे उन्होंने ही मुझको गाइड किया था। तो उनकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से मैं अपने नोट्स मैंने रेडी किए थे। उन्होंने ही बताया था मुझे ये नोट्स, ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है, एंड वो मुझको गाइड करते रहते थे। तो वो 60-70% सर मैंने उस पर रिलाई किया था। एंड उसके अलावा समर्थ लॉ पब्लिकेशन की बुक्स आती हैं, मार्केट में अवेलेबल है, जो काफी जुडिशरी एस्पिरेंट यूज करते हैं, उनको यूज किया था सर, टू फिल द गैप्स हमारे आंसर्स में। कई बार हमने जो अपने हिसाब से का आंसर बनाया होता है, वो उसमें कुछ चीज मिस आउट हो जाती है, क्योंकि आप 1.5 पेज में बहुत ज्यादा आंसर कंटेंट नहीं लिख सकते हैं। तो यू नीड टू बी ऐसा कि सारे पॉइंट्स आपके ऑलमोस्ट कवर्ड हो जाएं और एग्जामिनर को बहुत ज्यादा स्कोप ना मिले मार्क्स काटने का। तो सर उस केस में वो जो समर्थ पब्लिकेशन की बुक्स ने हेल्प किया, एंड जो मेरे मेंटर्स ने नोट्स मेरे हेल्प किए थे, और दीज टू थिंग कॉम्बिनेशन बहुत हेल्प हुआ था। Yes, definitely, Rishabh. And moving ahead, my next question to you is कि Adsorb has a very unique feature, that is means blueprint, where the all the previous year important means topics are mentioned. And as we have mentioned, the previous year papers are very important as far as the means preparation is concerned. So can you please tell us कि आपने कैसे use किया and how you have prepared with the important key topics of the means examination? Yes, sir. So, like I told you, one of my friend was a रेगुलर स्टूडेंट ऑफ एड्सॉर्ब लॉ, एंड उसने मुझे बताया था कि जो मेंस की कॉपी है काफी डिटेल में चेक होती है आपके यहाँ। तो एड्सॉर्ब लॉ का मैंने सर दिस पर्टिकुलर फीचर को यूज करता था कि मैं अपने फ्रेंड को भेजता था ये आंसर, एंड ही यूज टू टेल मी कि इस क्वेश्चंस में क्या क्या चीजें मिसिंग है। एंड बिकॉज इट हेल्प मी अलॉट एंड ही इज ऑल्सो सर्विंग, तो उस वजह से ये वाली चीज मेरे को काफी फायदा आई। एंड आई यूज टू गिव हिम अ लॉट्स ऑफ आंसर डेली बेसिस पे कि भाई जस्ट चेक इट, एंड जो तुम्हारा एड्सॉर्ब में जो फोरम बना हुआ है, क्या उसके अकॉर्डिंग ये आंसर है या कुछ मिसिंग है। एंड बिकॉज वो वन ऑफ द की फीचर ऑफ एड्सॉर्ब लॉ के मेंस जो चेक करते हैं, कि वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि रैंडमली चेक हो जाएंगे, वो हर पैराग्राफ उन्होंने रीड किया होता है, एंड वहां पे कमेंट्स भी एडेड रहते हैं कि इस क्वेश्चन में ये चीज मिसिंग है। तो दैट दिस पर्टिकुलर फीचर हेल्प मी अलॉट टू फिल द गैप्स, क्योंकि आप यही चाहते हैं कि कोई स्कोप ना रह जाए कि मेरे किसी आंसर में कोई चीज मिस हो जाए। Yes, Rishabh. And what we feel कि most of the students जो गलती करते हैं, they think कि writing the answers would suffice the purpose, but it is not the manner. Till the time you are not getting your answers evaluated, you will not get to know where you are committing the mistakes, कहाँ पर आपको improve करना है, कहाँ पर आपको additional चीजें include करनी है, because examiner at the end of the day will be checking your copies. And only writing the answers on the daily basis won't suffice till the time you are not getting them evaluated. तो आप ये बताइए ऋषभ कि बिफोर योर मेंस एग्जामिनेशन, तो व्हेन यू गेट योर कॉपीज इवैल्यूएटेड, तो आप उसके बाद उसमें अपने आंसर्स में कैसे इसको इंक्लूड करते थे एंड कैसे उस इवैल्यूएट कॉपी से अपने आप को इम्प्रूव करते ये सर, तो इसके लिए सर मैंने एक बहुत ही नॉर्मल सी टेक्निक यूज करी थी कि मैं जो मेरे नोट्स थे ऑलरेडी, एंड कोई चीज जो मेंस के उस मेरे आंसर राइटिंग में मुझे पता चली कि ये मिस्टेक है जो उनको फिल करना पड़ेगा मुझे गैप। तो सर व्हाट आई यूज टू डू इज कि मैं अपने नोट्स के पास से एक स्टिकी नोट्स वाले पेजेस चिपका लेता था, एंड इसमें उसमें ही ब्रीफली लिख देता था कि इस जब इस आंसर को मैं फर्दर रिवाइज करूंगा, तो इसमें ये वाले 2-3 चीजें हैं जिनको मेरे को इंक्लूड करना होगा। एंड उसके लिए मे बी मैं उन पर्टिकुलर नोट्स में से कुछ चीजें मिस आउट कर सकता हूँ, लेकिन ये 3 चीजें हैं जो कि मैं ग्रीन पेन से मेंशन कर देता है कि ये 3 सब टॉपिक हैं, ये जरूर लिखना
होगा तभी एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ भाई ही नोज इस क्वेश्चन के बारे में। तो हम कई बार क्या कंटेंट कहानी लिखने लग जाते हैं, कुछ कुछ पॉइंट मिस हो जाते हैं, तो हम थोड़ी कहानी कम कर सकते हैं और कुछ मेजर पॉइंट्स डाल सकते हैं जो कि एग्जामिनर को लगे कि नहीं ही नोज। एग्जैक्टली ऋषभ। सो नेक्स्ट वी वांट टू आस्क यू कि एमपीजेएस में जजमेंट राइटिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, एंड विदाउट प्रॉपर कमांड ओवर जजमेंट राइटिंग इट इज वेरी डिफिकल्ट टू क्लियर द एग्जाम्स इन मदर टेज। सो हाउ डिड यू हैंडल द जजमेंट राइटिंग पेपर? सर जो मेरा पहला अटेम्प्ट था जिसमें मैं क्लियर नहीं कर पाया, दैट वाज बिकॉज आई पर्सनली बिलीव कि वो जजमेंट राइटिंग के पेपर की वजह से ही मेरा मार्क्स सिलेक्शन फाइनल हो गया था। बिकॉज आई ओनली सिक्योर 38, 36 और 38 मार्क्स आउट ऑफ 100। एंड उसमें भी पर्टिकुलरली माई सिविल जजमेंट का जो पेपर है उसमें मेरी गलती हुई थी। तो व्हाट आई लेटली रियलाइज्ड ड्यूरिंग जो प्रैक्टिस भी मैंने करी घर पे बैठ के, कि एविडेंस का जो पेपर है, एविडेंस सब्जेक्ट है जो, इस पे हमें काफी थ्रो कमांड होनी चाहिए। एंड अगर वो कमांड रहेगी तो वील बी इन अ बेटर माइंडसेट टू अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट क्या है। तो दैट क्वेश्चन वाज रिगार्डिंग विल की रजिस्ट्रेशन का था। एंड दो पार्टीज के बीच में विवाद था किसी प्रॉपर्टी को लेकर विद रिस्पेक्ट टू फादर एंड अंकल। एंड जो विल, मेजर मुद्दा विल का था, और विल में भी अटेस्टेशन का पॉइंट था जो एविडेंस एक्ट के सेक्शन 68 से 72 में गवर्न है। तो उस टाइम सर मैंने मिस जजमेंट करी थी, और मेरे पार्ट पे बहुत बड़ी गलती थी कि मैंने उस प्रोविजन का कुछ अलग इंटरप्रिटेशन निकाल लिया था। एंड उसके बेसिस पे मैंने जजमेंट राइटिंग डिसाइड की, एंड ऑनरेबल जज जिसने भी चेक की थी कॉपी, उन्होंने राइटली उसको काट दिया था। उस पेपर में कम मार्क्स मेरे को मिले थे। एंड फ्रॉम देयर आई रियलाइज कि नहीं, कमांड जरूरी है आपकी एविडेंस एक्ट पे, और सीपीसी सीआरपीसी भी जरूरी है, बट अगर आपको एविडेंस पे कमांड रहेगी तो दिस पर्टिकुलरली पेपर विल, आप एक बेटर पोजीशन में रहेंगे इस पेपर को सॉल्व करने के। एग्जैक्टली ऋषभ, क्योंकि जजमेंट राइटिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट की टर्म्स है वो है आपका फॉर्मेट एज एस मार्चिंग एंड एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस, एंड इन दोनों पे आपको कमांड होनी बहुत जरूरी है। एंड फॉर द जजमेंट राइटिंग देयर इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन, एंड दैट इज द जजमेंट राइटिंग पावर प्लैक कोर्स which is provided by us, and where we get the notes, you get the workbook, you get the sample judgments, and you get the creative judgments, which you must also have used in your judicial preparation journey as far as experience is concerned. एंड इसके बियॉन्ड ऋषभ आपको कुछ नहीं चाहिए, एंड दैट इज व्हाट यू कैन बेल यू इन द एग्जामिनेशन ऑफ द जजमेंट राइटिंग पेपर। So Rishabh, next tell me that you have used the content in a very systematic manner with a particular technique. So I want to ask you, because many of your audience would be going to way of Adsorb law, and generally भी जो दूसरे students होंगे who are using the free content of Adsorb, as you know that more than 20% of our content is free. So what is your advice कि best utilization of Adsorb law content कैसे होना चाहिए, and how to utilize the Adsorb law content in a best possible manner? सर मैं इसका मेजर जो कहूंगा कि अगर आप प्रिलिम्स वाली फोकस कर रहे हैं चीजें, तो हम, मार्केट में एक दो बुक्स अवेलेबल हैं जो कि प्रिलिम्स में हेल्प करती हैं, बट वो पूरे इंटायरली वेस्ट है ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट ईयर क्वेश्चन दूसरे स्टेट्स के। लेकिन आजकल ऐसा एक ट्रेंड आ गया है कि जरूरी नहीं है सारे क्वेश्चन पुराने वाले ही आए हैं जो प्रीवियस ईयर में चलते आ रहे हैं। एंड विच अब तो न्यू, तीन न्यू लॉज भी आ गए हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि आप कोई ऐसा एमसीक्यू मॉक सॉल्व करें जिसमें नए सेट ऑफ क्वेश्चन है, एंड जो कि रिपीटेटिव भी नहीं है पास्ट ईयर वाले। क्योंकि मुझे याद है सर मेरे टाइम पे क्वेश्चंस आए थे प्रीलिम्स में जो कि रिपीटेटिव नहीं थे बिल्कुल भी, न्यू सेट्स ऑफ क्वेश्चन। तो एग्जामिनर भी अब वो नहीं चल रहा है पुराने पैटर्न पे, क्योंकि कट ऑफ इतने हाई जाने लगे, ही नोस कि भाई फॉर्मेट थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, हमें नए सेट्स ऑफ क्वेश्चन डालने ही पड़ेंगे। तो इसके लिए जरूरी है कि आप जो मार्केट में बुक्स हैं फास्ट ईयर वाली वो जरूर करें, लेकिन ऐसा कोई प्लेटफॉर्म यूज कर जैसे एडजॉब का है जहाँ पे रेगुलरली न्यू सेट्स ऑफ क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड। एमसीक्यू के लिए कोई ज्यादा प्लेटफॉर्म सर अच्छे हैं नहीं। मैंने एक दो और भी ट्राई किए थे, वो मुझको इतने खास नहीं लगे थे। एडजॉब के एटलीस्ट जो क्वेश्चंस थे दे वर ऑफ गुड क्वालिटी, एंड डेली आपको मिल रहे हैं 10 सवाल फ्री में करने के लिए। तो आप वो इससे ज्यादा क्या चाहेंगे। और एंड टॉपिक वाइज बाइफरकेशन है। कभी कभी मेरा सर मूड नहीं होता था कोई सब्जेक्ट करने का, तो आई यूज टू डायरेक्टली गो फॉर टीपीए, कि भाई टीपीए के क्वेश्चन ही सॉल्व करता हूँ। तो वो बाइफरकेशन भी है, एंड इससे काफी आपको हेल्प मिलेगी। पास्ट ईयर भी करिए, लेकिन ये वाले मॉक्स जरूर सॉल्व करिए। मॉक्स की है, हम बेरक पढ़ते रह जाते हैं, मॉक लगाते नहीं है, तो वो वही रिवीजन वाली चीज है। हमें रियलिटी चेक जरूरी है, and वो मॉक्स से ही मिलेगा। Perfect, Rishabh. Also, Rishabh, just one more question which I want to add.
A lot of people have profile insecurity. So there's a gap year, work experience nahi hai, we are not from Indian UX, etc., etc. So do you think that all these things matter in the actual examination, interview, or selection, or is it just a myth? सो आई फील कि अगर आप इंटरव्यू में अगर कन्विंस कर सकते हैं ऑनरेबल जजेस को कि ये गैप क्यों था, या जैसे मेरे में कोविड की वजह से तो अराउंड 1.5 2 इयर्स एग्जामिनेशन ही नहीं हुए, तो आई वॉज एबल टू कन्विंस देम कि इस वजह से मैं एग्जाम ही नहीं दे पाया। उसके बाद आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग ऑल्सो, सो दे वर वेरी कन्विंस्ड कि हाँ ये रीजन हो सकते हैं। मेरे अटेम्प्ट, ये थर्ड अटेम्प्ट था, एंड दो अटेम्प्ट काफी जल्दी हुए थे, and उसके बाद मैंने तैयारी स्टार्ट कर दी थी। तो अगर हम उनको समझा सकें कि भाई क्यों गैप है इतना, और आजकल प्रिपरेशन में टाइम लग भी रहा है, ऐसे आप नहीं सोच सकते हैं कि गवर्नमेंट एग्जाम है कि 1 साल में हो जाएगा। प्रिपरेशन ही इतना टाइम लगता है, 1.5 2 साल तो लग ही जा रहे हैं लोगों को। तो इफ यू आर एबल टू कन्विंस देम, तो मुझे नहीं लगता उसका फिर बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। Yeah, okay, sure. And so since we are talking about profile insecurity and this is actually connected with your interview, so can you tell us that how was the interview journey and what kind of questions were asked you in your interview? जैसा क्वेश्चन सर, द ऑनरेबल जजेस, 3 जजेस का पैनल था, एंड व्हेन आई टोल्ड देम कि आई वाज, बिकॉज दे न्यू इंटरव्यू के शुरू में ही कि आई एम प्रैक्टिसिंग फॉर द दिल्ली हाई कोर्ट एंड सेशंस कोर्ट, सो दे वर वेरी पर्टिकुलर कि किस एरिया में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। एंड व्हेन आई टोल्ड देम कि मैं क्रिमिनल साइड में मोस्टली प्रैक्टिस करता हूँ, तो दे पिन पॉइंटेड क्वेश्चंस डायरेक्टेड फ्रॉम द सिविल साइड। उन्होंने मुझसे बहुत कम ही क्रिमिनल साइड का पूछा, क्योंकि मैं ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। सो ये एक ट्विस्ट सा था मेरे लिए, क्योंकि आई एम नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, आई बिलीव, क्योंकि मैं क्रिमिनल साइड प्रैक्टिस करता हूँ, तो वहां मेरे को ज्यादा मेरी नॉलेज है। बट उन्होंने काफी अच्छे क्वेश्चन पूछे सर। सीपीसी का अगर मुझको याद है, एक क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा था वाज रिगार्डिंग डिक्लेरेशन एंड इंजंक्शन। इंजंक्शन कि अगर एक इंजंक्शन सूट है सिंप्लिसिटर, जिसमें डिक्लेरेशन भी मांगी है विदाउट आस्किंग फॉर पोसेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, तो क्या ये मेंटेनेबल है कि नहीं। फिर सर एक इनसफिशिएंट स्टैम्प पे क्वेश्चन पूछा था सीपीसी का। एंड रेस जुडिकाटा का सर एक प्रॉब्लम बेस्ड उन्होंने क्वेश्चन पूछा था। तो ऑल फैक्चुअल क्वेश्चन जिसको आप डायरेक्टली, मतलब आप सिर्फ डायरेक्ट से नहीं कर सकते हैं, आपको मीन्स अगर आपने तैयारी सही से किया तो आपको मिल जाएगा। ये क्वेश्चन थे सर। एंड सीआरपीसी में सर वो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड पे काफी प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछे थे कि अगर कोई विटनेस का टेस्ट आइडेंटिफिकेशन किन कंडीशंस में आपके हिसाब से जरूरी है। एंड ऐसे ही सर कंसेंट पे उन्होंने पूछे थे 164A मेडिकल एग्जामिनेशन पे, काफी अच्छे सवाल किए थे। तो दीज वर सर क्वेश्चन जो कि मुझको लगता है कि मैंने क्योंकि प्रैक्टिस की है, तो वहां से हेल्प हुआ है मुझे सॉल्व करने में। Exactly, Rishabh. And as all of you know, that recently 3-year practice rule has been incorporated and it is made as an eligibility criteria. So practice has helped you in a very good manner because you were able to meet their demands of the practice as well along with the judiciary. So fantastic, Rishabh. So Rishabh, listening to your journey, I'm getting one more question in my mind that which a lot of students ask me. Is sir, what is the single most important factor or strategy in your judicial service preparation? मैंने सर जो बताया कि मेरे लिए पर्सनली, सबके लिए काफी डिपेंड हो सकता है, कुछ के लिए कंसिस्टेंसी हो सकती है, तो कंसिस्टेंसी मेरे लिए उतना बड़ा इशू नहीं था। मेरे लिए इशू था बस रिगार्डिंग रिवीजन, कि मैं खुद को कन्विंस शुरुआत में नहीं कर पाता था कि आई वॉज अंडर बिलीफ कि नहीं मैंने ये चीज पढ़ी है तो मुझको याद ही होगी है। बट लेटली आई रियलाइज, जब मेरे इंटरव्यू तक में अपियर हो रहा था, बिकॉज आई अपियर्ड इनिशियली ऑल्सो फॉर द मध्य प्रदेश इंटरव्यू एंड यूपी में भी। एंड वहां पे मुझको रियलाइज हुआ कि रिवीजन जो चीज है वो की वजह से मैं मिस आउट हो जा रहा हूँ, कि मैंने पढ़ा बहुत कुछ है, याद भी बहुत चीजें की हैं, बट जब एग्जाम करीब आ रहे हैं तो मुझको उतनी चीजें याद नहीं रह रही हैं। तो सर सिंगल मोस्ट अगर मैं कहूंगा तो दैट वुड बी रिवीजन। So Rishabh, can you tell us what was the revision strategy according to you? How do you revise? How should you revise? And how frequently you should do it? सर ये एक फर्स्टली तो इसमें है कि कैपेसिटी डिपेंड करती है पर्सन टू पर्सन, कि वो एक दिन में कितनी चीजें याद कर सकता है। तो मैंने बहुत ज्यादा ऐसे टारगेट नहीं रखे थे, मैंने 3 4 क्वेश्चन का ही टारगेट रखा था कि आई डू 3 4 क्वेश्चन, क्योंकि साथ में आपको बेरेक्ट वगैरह भी देखने हैं, प्रीलिम्स का पार्ट भी बैलेंस करना है, ट्रांसलेशन भी देखनी है। तो अगर सर मैंने दिन में 3 4 आंसर याद किए हैं, तो व्हाट आई वुड डू इज कि लेट से सेक्शन 1 से 150 किया मैंने सीआरपीसी के मींस के क्वेश्चन आंसर राइटिंग करी, मतलब याद किए। तो सर अगर मैंने इसको आज याद किया है और इसमें मैंने लेट से 5 6 घंटे इन्वेस्ट किए,
तो पहले जो मेरी गलती होती थी कि आई वुड लीव इट, फिर मैं 15 दिन बाद देख रहा हूँ और फिर उतना ही टाइम लग जाता था, तो साइकिल कंप्लीट नहीं होती। जब मैंने थोड़ी स्ट्रैटेजी चेंज की, उसमें ये किया कि अगर मैंने आज इसमें 6 घंटे इन्वेस्ट करके याद किया तो मैं 3 दिन बाद इसको एक बार रिवाइज कर लूंगा, एंड उसमें 6 घंटे नहीं लगेंगे, उसमें 1 1.5 घंटे ही लगेगा, या लेट से 2 घंटे भी लग गए। 2 घंटे लगे सर तो 3 दिन बाद उसके अलावा फिर मैं 5 दिन का गैप ले लेता था। फिर 5 दिन, 3 से 5 दिन, 8वें दिन फिर मैं एक बार रिवाइज करता था। तो ऐसे कर करके वो आप 15 20वें दिन तक आपको एकदम याद हो जाएंगी चीजें, और फिर उतना टाइम नहीं लगेगा, वो 6 घंटे की चीज हम हाफ एन आवर में रिवाइज करके रख देंगे। तो ये चीज करनी चाहिए। अब वो डिपेंड करता है आपको, जैसे भी रिवीजन हो, कुछ लोगों को अगले दिन ही रिवीजन चाहिए रहता है, मैं तो ऐसा 3 5 इस टाइप का गैप ले लेता था, और इससे सही होता था, फायदा हुआ है। Yes, Rishabh, and it is extremely important in your journey that you revise on a daily basis to get a rank. Because if you do not revise, you can't retain the examination. So whatever is the problem, be it prelims, mains, or whatever, you start focusing on the revision, and definitely that problem will go away. And also at Absorb, we also have devised out the revision strategy, which we tell our users that you should revise in a batch of 1 day, 3 days, 7 days, and 30 days. It means so whatever you read today, you should revise it tomorrow. Then the next revision cycle should be after 3 days. Then at the end of the week, you should devote an entire day for whatever you have read in the entire week. And at the end of the month, you should have a day to revise entire thing. So because जितनी बार आपने उस चीज को रिवाइज किया, आपने आपके दिमाग में वो चीज रिटेन होती हुई चली गई, एंड यू विल नॉट फॉरगेट इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. So, Rishabh, after this, we'll go ahead with the rapid fire round. But before that, I just want to ask you, what do you have to say about the Adsobler role in a judicial operation journey, and what is your opinion about the content ecosystem which has been provided by Adsobler? तो दो चीज जो एड्सॉर्ब लॉ की पर्टिकुलरली मेरे को जो अट्रैक्ट करती है, फर्स्टली आई मैंने काफी डिटेल में बताया एमसीक्यू वाला पार्ट प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि हम मिस आउट कर जाते हैं, हम सॉल्व नहीं करते हैं, खुद से छुपा रहे होते हैं कि भाई याद होगा मुझे। लेकिन अगर आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो खुद को टेस्ट कर पाएंगे, तो दैट इज वन ऑफ द फीचर। एंड सेकेंडली जो था सर, मेंस आंसर राइटिंग की जो इवेल्युएशन है, इवेल्युएशन पार्ट काफी ज्यादा अच्छा है। कई इंस्टीट्यूट्स हैं जो कॉपीज ही चेक नहीं कर रहे हैं, मतलब ऑफ कोर्स आई नॉट पर्टिकुलरली नेम देम, बट एक एक महीने तो कॉपी चेक नहीं हो रही है, तो फिर फीडबैक नहीं मिल पा रहा है। एट जॉब में ये था, फीडबैक मिल जाता था, उसका हेल्प मिलता है आपको रेगुलरली, कुछ कुछ टाइम में फ्रीक्वेंटली अगर कॉपीज चेक हो जा रही है और फीडबैक मिल रहा है, तो एटलीस्ट विल बी इन अ बेटर पोजिशन कि हम उसको अमेंड करके सही कर लें अपने नोट्स में। तो दीज आर द टू फैक्टर, टू फीचर्स जो मेरे को काफी सब बेटर लगते हैं। Rishabh, thank you for your kind words. And also, want to ask you, would you recommend the Adsobler to the students who are preparing for the judicial service examinations? यस सर, यस, ऑफ कोर्स दे नीड टू यूज इट। एंड बेस्ट चीज है कि ऑनलाइन है, तो आपको ऐसा कोई पर्टिकुलर सिटी वाला चीज भी नहीं है। मैं बहुत ज्यादा इस चीज के उसमें रहता भी नहीं हूँ, ऑफलाइन वाली चीज के पक्ष में, क्योंकि आजकल हम काफी टाइम वेस्ट भी होता है, अनलेस कुछ लोग हैं जिनको पसंद आती है ऑफलाइन कोचिंग। आई वॉज वेरी पर्टिकुलर, क्योंकि मैंने अपना जो भी किया था मैं ऑनलाइन ही तरीके से करता था, तो आई लाइक ऑनलाइन मोड जो पोस्ट कोविड कोविड एरा में जो एक बून आया है। बट आई थिंक कोचिंग्स आर शिफ्टिंग टू ऑफलाइन, बट आई लाइक दिस ऑनलाइन। तो एट जॉब का ये तो बेस्ट पार्ट है कि आप कहीं So, भी बैठ के अपना गाँव में भी पढ़ सकते हैं। exactly, because we are remotely accessible, and each and every student उसको ऐप पे everything which is needed to clear the examination is there on the app. Be it MCQs with the detailed explanation, be it Q banks, be it case laws, be it recent case laws of the recent Supreme Court and the High Courts, everything is there on the app. So Rishabh, now let's start with the rapid fire round. इसमें हम आपसे कुछ questions पूछेंगे and you have to quickly answer them. So first question, please tell us how you kept motivated in your journey and what did you do for your mental health? मोटिवेशन वो सर, whenever whenever I was low, मैं अपने पेरेंट्स के साथ ही रहकर तैयारी कर रहा था, तो मैं उनको लुक अपॉन करता था। फादर आर्मी में थे, तो आई हैव सीन कि कंसिस्टेंट आपको रहना पड़ेगा, अगर मन नहीं है तो भी यू हैव टू गो। तो दिस इज वन थिंग। एंड मेंटल हेल्थ के लिए सर, शुरुआत में आई वॉज वेरी अनफिट, मैंने काफी वेट गेन कर लिया था, और 2 3 साल में ऑल्दो आई वॉज रेगुलर क्रिकेट खेलता था मैं कॉलेज में, लेकिन मैंने काफी हेल्थ अपनी बिगाड़ ली थी ड्यूरिंग प्रिपरेशन। तो इसमें मुझको बताया गया, आई
दो तीन लोगों से एडवाइस की, एंड दे टोल्ड मी कि आपको रनिंग वगैरह करनी पड़ेगी, तो आई यूज टू गो फॉर एक्सरसाइज वगैरह। तो ये सब करने से आपको मेंटली, आप बॉडी अगर आपकी अच्छी है तो फिर आप पढ़ाई में भी अच्छा फील कर पाएंगे। Perfect, Rishabh. So my next question is, which I think everyone suffers, is that how to deal with negativity and toxic relatives during the preparation. कट डाउन करके बिल्कुल, मतलब आप सुनो ही मत। एक वो बना लीजिए कि फर्क ही नहीं पड़ेगा कोई क्या बोलता है। तो वो तो जब हो जाता है तो वो आपको हाँ हाँ बोलने लगेंगे, एंड उस टाइम वो डाउन करना चाहेंगे, तो उनसे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फर्क आपको अपनी तैयारी से, एंड जो आपके क्लोज है, मतलब मम्मी पापा भाई बहन है, बस इन लोगों, यही है आपकी जो दुनिया है। इसके आगे ये जो लोग हैं ये सब ऐसे ही क्राउड है, इनको इग्नोर, कट आउट करना बहुत जरूरी है। ये तो डिमोटिवेट ही करेंगे हम, बाद में हो जाएगा तो वो तारीफ ही करेंगे, तो इतना सीरियसली नहीं लेना है। Definitely, Rishabh. Next, please tell us about your role model. सर रोल मॉडल, एक तो ऑफकोर्स मेरे फादर हैं, जिनको मैं लोग ऑन करता हूँ हर चीज देखने से। एंड स्पोर्ट्स फील्ड में सर विराट कोहली का बहुत बड़ा फैन हूँ मैं। उनकी कंसिस्टेंसी देख के, मतलब देख रहा हूँ हमेशा से, तो वो हंगर है कि भाई नहीं, करते रहना पड़ेगा, एंड अटैच नहीं होना है किसी चीज से बहुत ज्यादा। वरना अगर हम किसी और चीज से अटैच होंगे तो फिर वो रिजल्ट इफेक्ट करेगा हमारा। एंड कोई कई बार आपका टाइम सही नहीं है तो रिजल्ट नहीं आएंगी, लेकिन फिर 71st सेंचुरी आती है 2 साल बाद। Definitely, Rishabh. So, Rishabh, how you used to unwind your day? सर इसके तो यही था कि बीच में थोड़ा क्रिकेट खेल लिया, एंड साथ में प्रिपरेशन की भी बैलेंस कर लिया, कुछ दोस्त थे उनसे भी मिलता था। तो इट वॉज ऑल मिक्सचर, इन तीनों चीजों का बैलेंस कर लेता था। एक दो क्लोज फ्रेंड आपके होने चाहिए जिस शहर में भी आप हैं, कि आप कभी भी उनसे मिल लीजिए, वरना फिर काफी ये फर्स्ट वॉच जैसा सिचुएशन रहेगा। Perfect, Rishabh. So, Rishabh, my next question is, do you think that you can get a rank just by watching videos? नो, नेवर नेवर। आपको कभी ये चीज तो, मतलब मैं तो उतना ज्यादा देखता भी था इनिशियल ईयर्स में। देखते थे वीडियोस, यूपीएससी यूपीएससी के रील्स वगैरह आते थे वीडियोस, तो वो अट्रैक्ट है, बट वो वाले मोटिवेशन बहुत ज्यादा काम नहीं करते हैं। वीडियोस के एंड तक वो मोटिवेशन खत्म हो जाते हैं, एंड उससे कभी कोई बना भी नहीं है, ना किसी का सिलेक्शन रुकी है। तो आपके अंदर खुद ही कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए, पेशेंस, कि भाई नहीं मैं कर लूंगा। वीडियोस वगैरह ये सब, एक रील्स वगैरह इंगेजमेंट फार्मिंग के लिए अच्छा है, बट कुछ ऐसा बहुत हेल्प नहीं करेगा। परफेक्ट ऋषभ। तो ऋषभ, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत सारे एस्पिरेंट्स पूछते हैं कि आपने पेन कौन सा यूज किया था अपनी मेंस प्रिपरेशन के लिए। पेन सर, पेन मैंने सर टेरामैक्स का यूज किया था। मैं अभी भी यही रिकमेंड करता हूँ सबको। परफेक्ट। तो ऋषभ, कैन यू टेल अस अबाउट योर फेवरेट बुक और इज देयर एनी कोट व्हिच मोटिवेटेड यू थ्रू आउट योर जर्नी। सर कोई ऐसा पर्टिकुलर कोट नहीं, बट मैंने बताया विराट कोहली को मैं फॉलो करता, तो उनके इंटरव्यूज में रेगुलरली देखता रहता था, क्योंकि उनकी जर्नी भी ऐसे अप डाउन रही है। तो एंड जब मेरा चीज नहीं सही चल रहा था, तो आई ऑलवेज यूज टू लुक आफ्टर कि कैसे इस इंसान ने। कोट सर एक हर्षा भोगले का है कि टैलेंट कैन ओनली ओपन द फर्स्ट डोर, एंड इट इज द अपॉर्चुनिटी एंड यूर विल टू डू जो आपके लास्ट डोर खोलेगा। बिकॉज बहुत ज्यादा सारे लोग हैं जो इक्वली टैलेंटेड है, बट अगर आप कंसिस्टेंट हैं तभी आप आखिरी वाला दरवाजा खोल पाएंगे। परफेक्ट ऋषभ। और तो ऋषभ, आपने बताया नहीं कि जुडिशरी में आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था। फेवरेट सर सीआरपीसी, बहुत बहुत अच्छा सब्जेक्ट लगता है। Perfect. So we have spoken about a lot of about your results, about your success, about your strength. Now please tell us what was the weak links in your preparation. वीक लिंक सर मैंने बताया, जैसे कि मैं रिवीजन नहीं करता था, एंड कई बार ब्रेक हो जाता था इसमें। तो अगर मैंने अपने 7 दिन इन्वेस्ट किए हैं, एंड जब मैं उसको वापस उठा रहा हूँ सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, तो मुझको पूरा टाइम वापस देना पड़ रहा होता है। एंड ये एक तो, जब आप वापस उसको उठाते हैं तो समझ भी आ जाता है आपके ब्रेन को कि भाई ये तो सारी चीजें उड़ चुकी हैं। तो वो डिमोटिवेट कर देता है कि यार फिर इसमें उतना दिन लगना पड़ेगा और टाइम है नहीं अपने पास। तो दिस वॉज वन वीक लिंक, जिसको एंड में मैं करेक्ट करने की काफी कोशिश करी कि ये रिवीजन वाली चीज तो कम से कम मैं फिल कर लूँ बाकी। एंड अगर आप रिवीजन करेंगे तो मेंस से पहले बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा। पहले मैं रात भर जग वग के देता था मेंस का एग्जाम,
जाने से पहले 3-4 घंटे की नींद ली, तो उससे हेल्थ भी अजीब सी हो जाती है, आपको अजीब सा भी लगेगा मेंटली कि नींद पूरी नहीं हुई है। लेकिन अगर आप शुरुआत से आप रिवीजन कर रहे हैं, तो आप अच्छी नींद भी ले सकते हो। 6 घंटे, 6-7 घंटे की नींद पूरी लेके मेंस एग्जामिनेशन आ रहे हैं, तो एक अच्छा लगेगा कि भाई रिवाइज तो कर ही लिया, आप कुछ अलग क्वेश्चन आ गया तो ठीक है, उस समय देखेंगे। एंड मैंने गलती ये सब के बाद भी सर मुझसे गलती हुई थी। मेरे मेंस एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन आया था, सेक्शन 195 सीआरपीसी ओनली, 197 सीआरपीसी जो कि स्ट्रॉन्ग है मेरा, मैं 195 लिखाया था 8 मार्क्स का, तो वो भी फिर भी गलती हो जाती। Prosecution sanction. Yes. So, Rishabh, just one more thing which I want to supplement with my previous question itself, that, and you can also give a long answer to this. आपको क्या लगता है कि जुडिशरी एस्पिरेंट्स क्या गलती करते हैं अपनी जर्नी में जिसकी वजह से उनको कई साल तक तैयारी करनी पड़ती है बिना किसी रिजल्ट के? सो व्हाट डू यू थिंक दे लैक अपार्ट फ्रॉम द रिवीजन? आई थिंक सर, अगर मैं अपने ही फ्रेंड सर्कल से जो एग्जांपल लेके बता सकता हूँ कि मेंस, कई कई स्टूडेंट होते हैं जो बहुत तेज हैं, कॉलेज में भी उन्होंने अच्छा किया, नॉलेज भी उनकी बहुत अच्छी है, प्रेजेंस में भी वो अच्छे से क्वालिफाई कर लेते हैं। बट एक गलती जो उनकी रहती है कि वो समझते नहीं है कि एग्जामिनर का माइंडसेट क्या होगा, कि वो क्यों पूछ रहा है। हम वहाँ पे नॉलेज तो अपनी, ऑफ कोर्स हम 1 to 1 तो है नहीं एग्जामिनर के साथ कि वो हमें जज कर ले ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज। ही विल जज अस ओनली ऑन द बेसिस ऑफ वो जो 2 पेज हमने लिखे हैं किसी आंसर में, चाहे वो कैसे भी लिखे हो, किसी ने याद करके लिख दिया हो किसी भी तरीके से। तो इसके लिए जरूरी है कि हम माइंडसेट समझें कि एग्जामिनर ने एक क्वेश्चन पूछा है। हम इस वाले ईगो को नहीं रखें कि ये मैंने ये चीज, अगर मैंने एक पर्टिकुलर आंसर बना लिया फॉर्मेट तो मैं ऐसे ही लिखूंगा। चेंजेस के लिए अडेप्ट होना चाहिए। अगर मैं जैसे बताया जॉब में वो था, तो मैं उसको स्टिकी नोट्स लगा देता था। इफ आई एम रिजिड कि नहीं यार, मैंने ये आंसर लिख लिया है, अब मैं तो यही लिखूंगा, चाहे जो भी हो, कुछ भी चेंजेस हो। बट वैसा नहीं है, आप अडेप्ट करिए चेंजेस को, उसमें परिवर्तन करते रहिए, क्योंकि आपको एंड में एग्जामिनर को कन्विंस करना है कि भाई इस 8 में से मेरे को तो 6 नंबर तो दो आप। तो इसलिए ईगो साइड रखिए एंड एग्जामिनर का माइंडसेट को समझिए कि क्यों पूछा है उसने क्वेश्चन। Yes, definitely. And we also suggest users ki always have a tendency, always have a mindset to adapt the changes with the changing time. Because एक era है 2020 का, एक है 2022 का, एक है 24 का, एक है recently 2025 का. So with every passing year, you have to see what the examiner wants from you, and accordingly you have to adapt yourself. So Rishabh, यस। did you also face any breakdowns in your journey, in your preparation? And can you please tell us about it? यस मेजर ब्रेकडाउन तो when I appeared for the UP Judicial Service Examination, उसके इंटरव्यू, ऑल्दो आई नो, जब आप एग्जाम लिखते हैं तो पता रहता है कि सिलेक्शन होगा कि नहीं, कुछ तो आइडिया रहता है आपको कि मैंने कैसा पेपर लिखा है। फर्स्ट टाइम जब एमपी जुडिशरी नहीं हुआ था तो ब्रेकडाउन था काफी मेजर वो। लेकिन दैट वाज माय इनिशियल ईयर, पहला अटेम्प्ट ही था, मैं इंटरव्यू तक गया था, तो था कि नहीं मैं कर लूंगा। बट यूपी जुडिशरी जब मेरा रुका था, तो दैट वाज, आई फेल्ट कि नहीं भाई, अब लग रहा है कि हट जाना चाहिए इससे, यानी छोड़ देता हूँ प्रिपरेशन। फिर मैंने अपने पिताजी से बात करी थी, एंड ही टोल्ड मी कि देख लो आप, मतलब मैं तो कहूंगा कि यू कैन स्टिल गिव अटेम्प्ट, क्योंकि कोई ऐसा इशू नहीं है। फाइनेंशियली ऑल्सो ही वाज वेरी सपोर्टिव। तो फिर आई डिसाइडेड कि बिकॉज मैंने अपना पहला एग्जाम एमपी जुडिशरी से स्टार्ट किया था, तो दिस दिस थिंग इन माय माइंड वाज कि एंड भी मैं इस एग्जाम को देके ही करता हूँ, और वैकेंसी आ भी गई थी। और फिर उसमें ये रिवीजन वाली चीज मैंने इनकलकेट की कि अब मैं रिवीजन करूंगा। तो ये सारी चीजें हेल्प की थी। वैसे भी ये मैं, मेरे हिसाब से मेरा लास्ट अटेम्प्ट ही था, माइंड सेट बहुत काफी क्लियर हो गया था, एंड उस वजह से प्रेशर कम हो गया था कि भाई अब काम ही फुल डिवोट तरीके से काम करूंगा मैं, तो उतना टेंशन नहीं था। तो ब्रेकडाउन तो थे सर, काफी मैसिव ब्रेकडाउन था। But you have taken this breakdowns not as a breakdown, but as a learning, and you have achieved this particular was your aim very perfectly. So, Rishabh, my last rapid fire round question to you is on a scale of 10, how would you rate the utility of adsorb law in a judicial patient journey? वेरी वेरी सब, मैं रेटिंग तो आई डोंट थिंक आई एम इस पोजिशन में, या इतना मैं कोई बड़ा आदमी कि आई वुड रेट अ बिग इंस्टीट्यूट लाइक दिस। बट हाँ, काफी यूटिलिटी है। अब आपको है कि आप इसको यूज कितने अपने सक्सेस से कर सकते हैं, उसको यूज करिए। प्रीलिम्स के लिए मैंने बताया, मेंस के लिए यूज इट टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी। एंड अगर आप उसको बेस्ट यूज कर रहे हैं तो हर चीज 10 on 10 आप यूज कर सकते हैं। अगर आप इतनी फैसिलिटी आप यूज ही नहीं करना चाहेंगे, तो फिर वो आपका नुकसान है। बिकॉज कंटेंट
में तो उन्होंने काफी एडजॉब ने काफी मेहनत करी। तो बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, कंटेंट टीम काफी अच्छी है, एंड इट इज फॉर द कैंडिडेट कि उसको बेस्ट उसको उसका यूटिलाइजेशन करें। Thanks, Rishabh, for your kind words. So, Rishabh, before we wind up this session, do you have any final thoughts for the students who are preparing for the judicial service examinations? ये सर ये है कि इधर उधर के जो लोग हैं, ये दीज क्राउड आर ओनली देयर टू डिस्टर्ब यू, कि आप प्रिपरेशन छोड़ दें, प्रिपरेशन ना करें, आप कोई प्लान बी है उस पर जल्दी जंप कर जाए। होना कुछ गलत नहीं, प्लान भी होना चाहिए, बट आप ऐसा जंप करें, ये सब क्राउड इज ओनली देयर टू डिस्टर्ब यू, तो इनको ज्यादा सुनना नहीं है। आप अपनी सुनिए और लगे रहिए, बिल्कुल सक्सेस मिलेगी। और अपने से ऑनेस्ट रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें पता रहता है कि हमारी गाड़ी या हमारी जो जर्नी है वो किधर जा रही है। अगर मैंने पढ़ा ही नहीं है 2 दिन, तो मुझको पता रहेगा कि ये तो दिक्कत होगी। तो हम अपने से ऑनेस्ट रहें, और ये आउटसाइड नॉइज को बिल्कुल बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होना इससे। Thanks a lot, Rishabh, for taking a time for this journey and sharing the journey with us. I hope lots and lots of aspirants are being enlightened after hearing the journey because लोग स्टार्टिंग में 1 साल 2 साल के बाद डिमोटिवेट हो जाते हैं एंड दे लीव द प्रिपरेशन बिटवीन. But you are one such person who kept on doing the studies for around 5 years, and then after you have achieved the same. So definitely lots of aspirants would be helped by this. And I thank you once again for taking a time and giving your insights about the judicial journey. Thanks a lot. थैंक यू सर, थैंक्स फॉर द अपॉर्चुनिटी।